Hello, welcome, assalamu alaikum. You are watching the Pavilion. I am Fakhr and this is A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app with our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup from Australia. अब से कुछ देर पहले दोस्तों पर्थ में ऑस्ट्रेलिया ने बेहतरीन मैच खेला श्रीलंका के खिलाफ और मैच जीते हैं अपना। और आइए जरा स्कोर कार्ड पे नजर डाल लेते हैं जल्दी से। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 157 for the loss of 6. There were some performances there, nothing significant. Maxwell bowling there, okay. Stark, Agar, Hazelwood, all looking good. Now, Australia in response started off okay, but then they just exploded. And you know what? Stoinis there has just made the fastest 50 for Australia in T20 cricket. And that's how the game ended in 16.3 overs. We are going to talk about that in detail. Let's take a look at the points table. This is how now the points table looks. Right now, we've got Sri Lanka and Australia now with 2 points. Australia still on the 4th place in this card, as you can see. New Zealand right on top, England following, Sri Lanka at number 3, Australia. And Afghanistan Island without any points in there. But that's how it is. With me in the studios, in the Pavilion, I've got the superstars, the legends, the monuments of cricket. These gentlemen have served the game of cricket and served Pakistan really well during their careers and continue to serve Pakistan. With me, I have Shoaib Malik, Misbah-ul-Haq, Waqar Younis and Wasim Akram. What a game of cricket. Australia there coming back, announcing their arrival after that debacle they had earlier against New Zealand. Yeah, that's the Australians we know. That's how they play their cricket. They came back hard. They knew they had to improve their run rate and they did significantly. -4 point something to -1.25 ho gaya or something. So they're back in the run and what an innings from Stoinis, man. Yeah. I mean, 18 ball 50, the second fastest 50 in the World Cups. मुझे पता नहीं था कि युवराज सिंह ने 12 गेंदों पे 50 किया हुआ है. Well done, Yuvi. Yeah, Yuvi hit 6 sixes in that innings. But look at Stoinis, he was really dominating. Once he got going, he was unstoppable. All sides of the wicket. Yeah. This was for me, the previous shot was shot of the day. जो back foot पे जाके उसने extra cover मारी है. And he's a big unit. He's a strong lad. Look at him. Yeah. Look at his arms. So any even miss hit will go out of the park. And we discussed about the boundaries. 74 meters either side थी, front की 81 meters थी, पर लग रहा था कि ये पिछले garden में खेल रहे हैं अपने घर के. So that is true though, by the way, because you say that he is playing in the back garden. This is his home ground. Melbourne Stars, he opens for them. ये उनका अपना घर है. यहीं पे उन्होंने अपनी जवानी की सारी क्रिकेट खेली हुई है. Melbourne Stars. No, sorry, my apologies. Melbourne Stars, he opens for that. My apologies, but this is his home ground. This is where he started his cricket. Yeah. So you know, good home conditions. बंदे को आदत होती है, पता होता है अपने ग्राउंड के बारे में शोएब. बिल्कुल पता होता है और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मीटिंग में आई एम श्योर दे हैव डिसाइडेड दैट्स हाउ दे गोना प्ले. और सर्टन जो बैट्समैन हैं जैसे मिच मार्श हैं या मार्कस स्टोनीज हैं या मैक्सवेल हैं, ये जो है खेलेंगे, ये अपने शॉट्स खेलेंगे और कोशिश करेंगे कि जो टारगेट जो भी मिला है उसको कम से कम ओवर्स में चेस किया जाए. और जो एंकर इनिंग्स मिसिंग थी जो हम चाह रहे थे कि स्मिथ खेलें और वो उस जॉब को पूरा करें, वो आज फिंच ने की. इवन दो ही इज़ प्लेड 42 बॉल्स, स्कोर्ड 31 रन्स, बट उन्होंने ट्राई किया शॉट्स मारने के, नहीं लगे. लेकिन उनके सामने मैक्सवेल, मार्कस स्टोनीज, इन्होंने ऐसी इनिंग्स खेली कि कोई भी टारगेट होता वो आराम से. मैक्सवेल ने प्रेशर ऑफ किया इनसे आके, थोड़ा सा अंडर प्रेशर थे ये. उसने पहली 6 गेंदों पे 22 रन किए. तो मोमेंटम की बात करते हैं ना हम T20 में, स्ट्रेट अवे वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ गया. एक और चीज़ हुई वसीम भाई कि मैक्सवेल का जो मैचअप था हसरंगा के साथ, उसने 4 दफ़ा उसको आउट किया हुआ था. लेकिन मैचअप का ये मकसद नहीं है कि आपने एक बंदे को 4 दफ़ा आउट किया हुआ है तो आप फिर आएंगे, आप कोई सी भी बॉल उसे कराएंगे तो वो आउट होके चला जाएगा. तो इसलिए थोड़ा सा मुझे ये लगा कि हसरंगा प्लान से थोड़ा हटे हुए थे. और अगर हम देखें धनंजय को, उन्होंने आते ही ये मिड विकेट और उसमें ये उन्होंने लूज बॉल दी मुंह में और उन्होंने उनको सामने छक्का मारा. इसके बाद से कॉन्फिडेंस उनका बहुत हाई हो गया था. ये उल्टी शॉट खेली उन्होंने, फिर उसके बाद इन्होंने फिर एक और बॉल कराया जो फिर डाउन द ग्राउंड उसने जो है 6 रन मारे. और आई गेस यही क्लास है. You know, it is very interesting and I think Sri Lanka would be worried, Waqar, because Hasaranga today bowled 3 overs for 53 runs. That's an economy of 17.66 and he's their star bowler. Yeah, that's how Australia plays. I mean, पिछला मैच देख के ऐसे लग रहा था कि जैसे
they might not qualify. I mean, suddenly they become favorites again. That's Australia for you. Right. A pure muscle. They literally hit with power more than anything else. It's not. अगर टेक्निक देखी जाएगी तो you will find a lot of faults in the techniques. In Maxwell उल्टी मारता है, सीधी मारता है. But half a bat, 90 meters, it's just it flies. The ball flies. They're so strong. That's why it's not 1, 2, 3. They've got about 5 of them in the squad, which can take game away from you from any sort of situation. So that is why I always say that Australia will all. अभी तो David पड़े थे, Tim David था, अभी Wade पड़ा हुआ था. I mean, there was so much. And then Agar जो उन्होंने खिलाया left arm, so he's a very decent batsman. So this team. I mean, this was a difficult pitch, and I think जो early on थोड़ा उनको झटका लगा. उनके पेसर अच्छी शुरू में अच्छी बॉलिंग की, तेज़ बॉलिंग की, बॉल जा रहा था थ्रू, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका एक बॉलर भी गिर गया. एंड देन दे ऑलरेडी हैविंग इंजरीज. द बॉलर्स आर गॉन बैक एंड फॉरवर्ड. So those issues are there with Sri Lanka, and they made full use of it. And also one thing which I spoke in the morning also, that their ego is being hurt. उनको काफ़ी तकलीफ हुई है इसकी, एंड उन्होंने गुस्सा कहीं निकालना था. न्यूजीलैंड और हम कह रहे थे ना कि हसरंगा उसको फंसाया हुआ है, ये किया. उन्होंने हसरंगा पे ही गुस्सा निकाला. सो दे लाइक टेकिंग दैट चैलेंज. दे लाइक सॉर्ट ऑफ वो क्या कहते हैं जब लड़ाई करते हैं तो फिर दे डोंट केयर कि कौन है. दे जस्ट गो रियली हार्ड. They go hard. Glenn Maxwell 191.66 strike rate. Marcus Stoinis 327.77 strike rate. मिसबाह किस नौयत की बैटिंग है? ये कत्ले आम था. वही मैं कह रहा हूं. किस नौयत? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि बड़ा ज़रूरी है क्रिकेट में मैचअप्स होते हैं, लेकिन आप अगर कंडीशंस को रिस्पेक्ट नहीं करोगे और कंडीशंस को असेस नहीं करोगे, जब इतने ज़्यादा ग्राउंड्स में मैचेस हो रहे हैं, डिफरेंट कंडीशंस में मैचेस हो रहे हैं, तो आप वो स्टैट्स ये नहीं कर सकते कि 4 दफ़ा कहाँ आउट हुआ है वो बंदा, कहाँ पे उसने उसके खिलाफ सक्सेस ली है. इट्स टोटली अ डिफरेंट ग्राउंड. हम यहाँ पे अगर देखें, स्टोइनिस ने वैसे सही असेस की है. 18 गेंद के लिए अगर आप देखें ना कि फास्ट बॉलर, आपने एक फास्ट बॉलर था लेहरू कुमारा, जिसकी गेंद उनको भी नहीं समझ आ रही थी. लेकिन हमारे एशियन जैसे हमने मिस्टेक की कि इन कंडीशंस में भी हम अपने स्पिनर्स पे डिपेंड कर रहे हैं. यानी कि हमने फास्ट बॉलर्स 2 मीडियम पेसर खिलाए हैं. जो बेनोरो फर्नांडो है वो भी मीडियम पेसर है. फिर लेहरू कुमारा वो भी कोनर रत्ने वो भी मीडियम पेसर है. बट स्टिल उनको ऑस्ट्रेलियन भी नहीं मार पाए उस तरीके से. स्पिनर्स को मारा उन्होंने क्योंकि कंडीशंस टोटली डिफरेंट थी. इन्होंने भी वही गलती की कि यहाँ पे अगर जितना रन श्रीलंका कर गई थी, 4 फास्ट बॉलर इनके पास भी होते, डिफरेंट बॉल गेम होती, इतना इजी नहीं होता ऑस्ट्रेलिया. बिल्कुल ऐसे ही है. ये आप देख सकते हैं फिंच की बैटिंग आज की, और ये लेहरू कुमारा की बॉलिंग आप देखें. बड़ा लुक एट दैट. वाह. आप देखें कि इन कंडीशंस में कैसे आप कर सकते हैं. आप एक ब्रीदर दे रहे हैं अपोजिशन को कि स्पिन आपने दी है तो वो थोड़ी देर खेलेंगे, उसके बाद आपको वो थ्रू द लाइन मारेंगे. और दूसरी जो बैटिंग में इनकी सबसे अच्छी चीज़ थी, मैं हमेशा समझता था हसरंगा और ठीक शना को जब भी कोई खेलता है, इफ़ द बॉल इज़ नॉट स्पिनिंग, नॉर्मली बैट्समैन स्टंप्स कवर करके खेलते हैं. अब वो विकेट टू विकेट, वो भी विकेटों में फिनिश करता है, वो भी यू हैव टू प्ले राउंड योर लेग. तो आपकी सामने वाली ऑप्शन तो खुलती ही नहीं है. लेग बिफोर बोल्ड इसीलिए गेम में आ जाता है. जहाँ सिर्फ गेंद स्किट कर रहा है, इतना स्पिन नहीं हो रहा. अगर आप देख लें उसके जितने भी शॉट्स मारे हैं उन्होंने, स्टोइनिस ने, उसने रूम दिया है. नाउ यू हैव नो ऑप्शन. आगे किया है तो सीधी, अगर फॉलो भी किया है तो उसको उसने इधर मार दिया. उसको आर्म्स खोलने का पूरा मौका मिला. आई थिंक दैट्स द राइट वे. और अब मुझे लगता है कि दूसरी टीमें भी देखेंगी बैट्समैन, और मे बी वो इस चीज़ को अब अप्लाई करें इनके अगेंस्ट. और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हसरंगा के अगेंस्ट, वो इतने प्रेशर में कभी भी नहीं आया, किसी टीम में प्रेशर में नहीं डाला. एक रिप्यूट बन गई थी. और दूसरी टीम में, सारी टीमें तकरीबन जितनी भी आती हैं वो उसको आराम से खेलने की कोशिश. अब शायद उसको टीमें अटैक करेंगी कि अटैक होने के बाद ये सूरत हाल है. अब देखें, अगर आपने कहा या शबी ने भी कहा, हम भी कह रहे हैं कि टीमें अब ऑस्ट्रेलिया से सीखें कि ऐसे बैटिंग करनी है. जो अगर ऐसी पिच है, स्पिनर आते हैं, तो क्वेश्चन अराइजेज नाउ कि डू अदर टीम्स हैव द एबिलिटी
and strongness like Australians have in the middle of strength and strong and miss hit bhi chakka. I think we saw a little bit of glimpse from the Kiwis in there. Yeah. You know, I thought we... Kiwis got it, Yeah. England's got it, Yes. England's got it and South Africa. South Africa's got it. South Africa. So Pakistan, India. No, India's got India it. has that. स्पिनर्स को अगर आप लोगों ने जैसे स्टोनिस खेला है ऐसे खेलना है तो उसके लिए आपको प्योर पावर नहीं चाहिए उसके लिए आपको अच्छा कनेक्शन चाहिए जब जो बॉल है वो बैट पे लगते हुए बैट्समैन को देखना चाहिए तो हाँ मसल तब ज़रूरत पड़ती है जैसे मीडियम पेसर कोई आ गया साइड्स की बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं हाँ उसमें स्टोनीज की वो पावर नज़र आई लेकिन अगेंस्ट स्पिन जैसे ये मैक्सवेल ने सामने मारा लेकिन ये हसरंगा को देखें आप जो अटैक हुआ है उन पे आज जो हमला हुआ है हसरंगा पे हसरंगा पे अटैक इसलिए हुआ है कि हसरंगा एक तो रिस्ट स्पिनर है और दूसरे जो हैं वो आज ये था उनका कि मैं बॉलिंग करूंगा आगे बेशक मैं स्लो छोड़ूंगा तो मुझे विकेटें मिल जाएंगी नहीं आपको अपनी स्ट्रेंथ पे रहना है टू गेट सक्सेस रिगार्डलेस किसके भी आप अगेंस्ट खेल रहे हैं कोई भी बैटिंग कर रहा है जितने भी छक्के मारे हैं वो स्वान रिवर में गए ना तो मैं कह रहा हूँ एक और चीज़ भी है जो बाउंस है विकेट का वो भी मुझे लगता है कि हसरंगा के अगेंस्ट गया है क्योंकि नॉर्मली जिस लेंथ पे वो थोड़ा सा पीछे बॉल करता है वो मुश्किल हो जाती है कनेक्ट करनी उन पिचेस पे जहाँ बॉल थोड़ा नीचे रहता है आज वो द बॉल वाज सिटिंग अप नाइसली पीछे जाके आराम से उसको सीधे भी छक्के मारे नो डाउट कि क्वालिटी थी बैट्समैन की पावर थी कि उस मतलब हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को उन्होंने सीधा भी मार दिया मिड विकेट भी मार दिया और इतनी बड़ी बाउंड्री अब बहुत कम बैट्समैन है जो खड़े खड़े छक्का मारते हैं और ये ऑस्ट्रेलियन या वसीम भाई थे बाटा साहब सन या फिर ऑस्ट्रेलियन आप देखते हो मैक्सवेल ही डजंट यूज हिज फीट खड़ा खड़ा है अगर पीछे भी गिरा है तो उसने पीछे जाके तो इट्स जस्ट हिट इट स्ट्रेट सो दैट इज That's just pure और देखिए हसरंगा ने अगर खड़े खड़े छक्के लगे हैं रिस्ट स्पिनर को हाँ मैं फिंगर स्पिनर को मान लेता हूँ कि आपको पावर चाहिए हो अगर आप क्रीज पे से बाहर नहीं निकल रहे लेकिन रिस्ट स्पिनर को अगर क्रीज के अंदर से छक्के लग रहे हैं इसका मकसद है उसकी लाइन और लेंथ दोनों खराब थी He's bowling full or something was wrong there. But yeah, I think Hasaranga will remember this game for a very long time. I doubt. I think he wants to forget that game. I think for the rest of the World Cup, he's going to be like very, very conscious about that. With that, दोस्तों हम लोग लेंगे एक छोटा सा वक्फा on the Pavilion. When we come back, there's more talk. Keep watching eSports, 10 Sports, and the Airwise app. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम आप देख रहे हैं Sports and Sports, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. The news out of Perth is that Australia won this one against Sri Lanka, and well, Sri Lanka must be wondering what went wrong. Let's take a look at the Sri Lankan batting. Talk about the Sri Lankan batting. When we शोएब आपने आज सुबह बोला था प्री मैच में कि अगर श्रीलंका टॉस जीता है तो उनको पहले बैटिंग करनी चाहिए एंड इत्तेफाक से उनकी पहली बैटिंग आ गई और मिसबा एक टाइम पे यूँ लग रहा था कि ये 150 नहीं कर सकेंगे एंड दे रियली सरप्राइज दे एक्चुअली गॉट अ गुड डिसेंट टोटल अप देयर दो नॉट इनफ क्लियरली फॉर द ऑजीज बट व्हाट डू यू थिंक अ गुड परफॉर्मेंस बाय द श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप आई थिंक कंडीशंस जिस तरह की थी डिसेंट टोटल था विनिंग नहीं था ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है इस ग्राउंड पे क्योंकि नॉर्मली इंटरनेशनल मैच नहीं होते उनके डोमेस्टिक में 180 है तो इसका मतलब है कि वो अपनी कंडीशंस को ऑस्ट्रेलियंस अच्छा खेलते हैं वहाँ पे राइट कोई भी जब बाहर की टीम आती है उसके लिए मुश्किल है आई थॉट के रन्स फिर भी ऐसे थे कि जिस पे फाइट कर सकती थी श्रीलंका बट अगेन आई थिंक करुणा रत्नेश चौथी ऑप्शन होनी चाहिए थी मीडियम पेस या फास्ट बॉलिंग में ओवरऑल उस वजह से मुझे लगता है उनको नुकसान हुआ ओवरऑल आई थिंक श्रीलंकन ये है कि विकेटें नहीं उनकी गिरी बट स्ट्रगल करते रहे आप देखें बाउंस की वजह से काफ़ी मुश्किल हुई फिनिश अच्छा किया एंड पे लग नहीं रहा था कि 150 भी होगा बट 158 130-35 रन लग रहे थे बट जिस तरीके से उन्होंने आखिरी 2 ओवर्स में उसको 158 पे लेके गए एंड द वे दे स्टार्टेड इन फर्स्ट 6 ओवर्स 30+ तो वो ऐसा उस टाइम पे एक दफ़ा मैच में आ गए थे बट अगेन आई विल से शॉर्ट ऑफ आ गए थे दे वर 97 for 3 in about 11 overs Yes. so that would have been an ideal platform to have wickets in hand kind of thing and have a go in last 5 overs
But I think they were lost because of the bounce. Yeah. और तो luckily इनको extras 23 मिल गए हैं, 23 extras in this 157 total. बिल्कुल और सही। राजा पक्सा को चलना पड़ेगा। शनाका Yeah. अगर इनमें से कोई भी 25-30 रन की इनिंग्स खेल देता तो ये स्कोर जो था ये 157 से ये 170 के अराउंड हो सकता था। आज शोएब इन्होंने आपकी वाली टेक्निक जो है चलाने की कोशिश की बीच में, विकेट से हट के ना, वो जो आप नहीं, वो अलग बात है कि बॉलर उधर ही आ जाते थे। दैट वाज द प्रॉब्लम। वो हटे हैं तो उन्होंने बाउंसर उधर ही कीता है, तो बिल्कुल ऐसे वैसे दे वर बिट लॉस्ट एज अ बैटिंग ऑन दिस बाउंसी ट्रैक। आई मीन राजा पक्षा डिड वेल अगेंस्ट पाकिस्तान अंडर प्रेशर द फाइनल एशिया कप, बट दीज पिचेस आर डिफरेंट। वहाँ से यहाँ ऐसी शॉटें अच्छी टीमें नहीं खाएंगी। यू हैव टू एक्चुअली play proper shots here if you're batting a number 4-5 in this format. I think another big mistake which Sri Lanka made was आपको समझ आ रही है ना कि पेसर जब बॉल कर रहे हैं तो बॉल फ्लाई कर रहा है, नहीं खेला जा रहा, रन्स नहीं हो रहे, बाउंड्रीज नहीं लग रही, देन दे शुड हैव ट्राइड टू जस्ट गो आफ्टर एगर जैसे उन्होंने किया। उन्होंने स्पिनर्स को लैंड नहीं होने दिया। पेसर्स पे अगर देखा जाए तो पहले पावर प्ले के अंदर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने भी कोई बाउंड्री नहीं मारी, 0 बाउंड्रीज इन द पावर प्ले इन द फर्स्ट 6 ओवर्स नो बाउंड्रीज। बट देन जब जो ही उन्होंने देखा कि ओके स्पिनर्स वी गोना टारगेट and they target like anything. I mean, that was just demoralizing the bowler, and I don't think Sri Lanka did that. आपको पेसर्स से प्रॉब्लम हो रही थी, इशू था बाउंस से, then runs कहाँ से आएंगे? Then they should have attacked Agar a little bit more. Agar just only went for what? 25 and 4. 25. He was very so economical. He should have been targeted a bit more, I think. Let me talk about Pat Cummins here. Today morning, Wasim, आप कह रहे थे कि Pat Cummins needs to get his act together, and he was a little expensive last time. Even today, he is the highest. I mean, his economy was 9 runs and over. Yeah, his T20 form is not that great. I mean, he's averaging 30. Last ये game निकाल दे तो इससे पिछले 6 मैचों में उसकी सिर्फ 2 विकेटें थी. So obviously he's their main. He's a test captain. He's a very useful cricketer, no doubt. For some odd reason, उसको I think T20 में वो लेंथ की समझ नहीं आ रही, मैंने किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है। और दूसरा उन्होंने प्लान चेंज किया आज उन्होंने मिचेल स्टार्क से नया बॉल नहीं कराया। यूजुअली जॉश हेजलवुड करते हैं, उनके साथ मिचेल स्टार्क करते हैं। जॉश हेजलवुड ने नया बॉल किया, बट पैट कमिंग्स ने किया, और मिचेल स्टार्क को वो चेंज पे लेके आए, और उन्होंने उनके साथ एक सिंपल सा प्लान रखा हुआ था। मोस्ट ऑफ द टाइम इवन ऐसी पेस वाले बॉलर के भी मिड ऑन मिड ऑफ पीछे खड़े हुए थे, और उनको ये बोला गया था कि आप जस्ट बॉल फुल, ट्राई यॉर्कर्स। और इसी वजह से मुझे ये लगता है कि ये इतने रन्स भी बने 157, क्योंकि जब आप आगे बॉल पिच कर रहे हैं तो उस पर रन्स बनेंगे या आउट होगा। ये पैट कमिंस है, you can see him on the screen. He bowled well early on with the new ball. Obviously the pitch was helping and it was seaming both ways. Length भी अच्छी थी, and they played some very average shots, Sri Lankans. ये जो वो शॉटें थी जो बैट्समैन जब घबरा के जिसको समझ में ना आए मैंने करना क्या है, बस घुमा दे, कहता है चला दो, मैं चला देना। I think that could be because of pure conditions, क्योंकि इस पिच पे आपका जो थोड़ा सा रिलीज ऊपर से करता है बॉलर, तो उसको ज़्यादा बाउंस मिलने का चांस है। इस वजह से मुझे लगता है कि शायद पैट कमिंस को उन्होंने नया बॉल कराया, और थोड़ा सा उसको स्टार्क को थोड़ा सा उन्होंने कॉन्फिडेंस देने के लिए कुशन दिया कि वो लेट आया। समझा था वकार भाई कि उन्होंने जो है उसको स्टार को सजा दी है कि तुम बड़ी पहली बॉलिंग कराई है, नहीं गेंद आज तू पुरानी गेंद शुक्र करो रूस नहीं गया। that goes into a lot of dark places, right? नहीं, I'm sure they must have discussed कि यार हम ये प्लान इस तरह सोच रहे हैं, and what do you think? I guess the success rate Mitchell Stark with the new ball, it's a lot. लेकिन ये है कि उन्होंने देखा कि टीम कम्स फर्स्ट, टीम को ये समझ आई कि टीम के लिए ये बेहतर है, and it worked out. It did. Now the question I think for all of the other teams, in fact, that are playing in this pool, how do you contain this Aussie batting lineup? Because once they get going, they look very destructive. Yeah, they do. But I think as a team, you got to think कि भाई ये हिटें मारने वाले हैं, ऊपर से 1-2 विकेटें गिरा लो, तो ये सुपर ह्यूमन तो है नहीं कि हर मैच में हर बॉलिंग को इस तरह फड़काएंगे। सो एज अ टीम, एज अ कैप्टन, आई हैव अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस कि इनमें थोड़ी सी वीकनेस है। दे बिग हिटर्स, बट अगर 2-3 विकेटें गिर जाए, इन हिटर्स को ये नहीं पता
कि हमने लंबी बैटिंग कैसे करनी है, हिट तो मार लेंगे हर गेंद पे। सो वही जो प्रॉब्लम हमें आसिफ से होती है कभी कभी कि वो 12वीं उम्र में आके वो गुमा होता है, करना की है मैं, he doesn't know how to bat in that format in for 8 to 10 overs, and I think same goes for them. ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आई गेस अगर आपके पास 15 में बॉलर्स हैं जो 140 प्लस वाले हैं, वो जिन्ने भी ना पा दो। उसके लिए लेंथ, उन बॉलर्स को लेंथ भी आनी चाहिए ना, जरूरी है खाली पेस ही हो, वो तो काबू नहीं कर पाएंगे ना। बिल्कुल, मुझे ये लगता है स्टोनीज और मैक्सवेल ये इनको जो 140 वाले हैं वो तंग करेंगे। और हाँ, उनके लिए एज वसीम भाई सेड कि उनकी लाइन और लेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन शोएब, जो स्टोनियस है, ही हैज़ नो इशू विद द पेस। वो बिग बैश में पेस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर हिम। यस, मैक्सवेल को मसला है, वो स्पिन को अच्छा खेलता है, लेकिन 140 प्लस वाले बॉलर पे वो उस तरीके से उसका ना स्ट्राइक रेट है ना उसकी एवरेज है। बट स्टोनियस ओपन करता है, वो ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश में ओपन करता है और उसका स्ट्राइक रेट, एवरेज, हर चीज़ ज़बरदस्त है। तो इसीलिए उसको नीचे भी रखा है कि 5 ओवरों में लास्ट 5 ओवर्स में ज़्यादातर पेसर्स वो भी ओपन करता है बिग बैश में। मैथ्यू वेड भी ओपन करता है बिग बैश में। भाई अगर आप पर्थ में खेल रहे हैं तो ये नहीं डील कर पाएंगे। हमने देखा कि अगर फिंच से नहीं डील हो पा रही, मीडियम पेसर का बाउंसर भी, तो 140 वाले से मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिगार्डलेस किसी भी वेन्यू पे खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में तो आप सारे पेसर्स डाल दें, लेकिन जहाँ की जो कंडीशन है फुटबॉल देखें आज पर्टिकुलर इस वेन्यू पे जो कंडीशंस हैं उसमें मेरा ख्याल है कि आप ये चांस ले सकते हैं। अगर आप सिडनी में खेल रहे हैं, मेलबर्न में खेल रहे हैं। इंग्लैंड के साथ अगला मैच कहाँ पे है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, अभी मैंने देखा नहीं, लेकिन इंग्लैंड के साथ अगर ऑस्ट्रेलिया का यहाँ मैच हो देखें मैच टू वॉच। मेरे ख्याल में नहीं, हाँ इंग्लैंड से होना है। एवरेज बाउंस देख लेते हैं। ये जो पर्थ का जो है बाउंस है ना, जरा इस पे नजर डालते हैं आप, जरा आपके सामने पेश करते हैं। ये जरा देखिए, मुलाहिजा कीजिए, ये एवरेज बाउंस है T20 वर्ल्ड कप का। ये विद इन ऑस्ट्रेलिया का एवरेज बाउंस का डिफरेंस है। नहीं, ऑफ कोर्स वो तो सबको मालूम है, पर्थ इज अ पिच लाइक दैट, यू नो, यहाँ की सॉइल ही ऐसी है कि यू विल गेट दैट एक्स्ट्रा बाउंस एंड दैट्स प्लेंटी। यू नो, ऑस्ट्रेलिया, विद इन ऑस्ट्रेलिया दैट इज अ मेजर डिफरेंस। जी, सिर्फ बाउंस का फर्क नहीं है, टाइम डिफरेंस भी है। टाइम डिफरेंस है पर्थ और सिडनी और पर्थ में, मेलबर्न, सिडनी, होबार्ट, पर्थ। हाँ, नहीं, टाइम डिफरेंस भी है, टाइम डिफरेंस है, लेकिन टाइम डिफरेंस डजंट रियली हार्म एनीथिंग। यू बीइंग सिली नाउ। बॉल का आप तक पहुंचने का भी टाइम डिफरेंस है ना। गुड। यहाँ से जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो तो पर्थ छेती पहुंचते हो, वो तो बॉल भी छेती जल्दी पहुंचती। I think it was a famous line by some famous Australian cricketer to Pakistani batsman. I remember he said when they toured, Pakistan toured Australia, and I think they did well against Pakistan. Pakistan did well against Australia and Pakistan. फिर वहाँ टूर गए तो I think Merv Hughes ने कहा था, mate, only drive you're gonna get is in Australia is from hotel to the ground. Good one. And on that note, मेरी गाल तो खत्म ही नहीं होती। Sorry, चलो आप ब्रेक ले लें। नहीं, आप पहले बात खत्म आप ब्रेक ले लें, आप पहले बात वापस आ गए। नहीं, मैं खत्म नहीं करूँगा। नहीं, मैं ब्रेक नहीं करूँगा, पहले आप बात करें। अब मैं अड़ गया हूँ। ओके, अड़ गया। मैं समझता हूँ कि यस, आज जो देखा गया है, जो ऑस्ट्रेलिया ने आज इंटिमिडेट किया है, या जो उन्होंने जिस तरह की हिटिंग दिखाई है, ऑफ कोर्स टीमें डरेंगी ज़रूर, टीमों को ख़तरा ज़रूर लगेगा, लेकिन इस तरह की पिच कहीं और नहीं मिलती है, ये पर्थ में ही है। तो पर्थ का आई थिंक वंस यू डन हियर विद पर्थ, आई थिंक वंस यू गो टू इवन मेलबर्न भी थोड़ा स्पाइसी था, लेकिन इतना नहीं होगा मुझे लगता है आने वाले वक्तों में। एडिलेड इज़ अ गुड पिच, ब्रिस्बेन इज़ अ प्रीटी गुड पिच, सो आई थिंक even out हो जाएंगी चीजें। इस तरह की पिच पे they are very dangerous. Yes, they are. And with that, we're going to take a break on the Pavilion. Keep watching A Sports, 10 Sports, and the ARY's app. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स एंड द ARY's app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. With me in the Pavilion, I've got the legends, the icons, Shoaib Malik, Misbah-ul-Haq, Waqar Younis, Wasim Akram. हम लोग बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला श्रीलंका का, जो मैच अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने बेहतरीन तरीके से उसको जीता। Interestingly, we're talking about this Perth pitch, Waqar. You say it's spicy, it's spicy, it's spicy. And you know what? Not chili spicy, it's just literally spicy. Yeah. Spicy. Zippy.
zippy. And you know what? We are going to be on this pitch for 2 consecutive matches. One against Zimbabwe, the other against Netherlands for Pakistan. Yep. So, should we be a little concerned? No, why? Just saying. I mean, being a Pakistan cricket team, you should be confident that these are the team, we can get our run rate, get our form back, but don't take them easy. ये ना समझना कि ऐसी जितनी ही आया करो, but be confident. That's what I'm saying. It is the first pitch. But control aggression, you know, come out strong after that defeat, move on quickly. India का match खत्म हो गया, learn from your mistakes and move on. And I suppose अगर आपके coaches, maybe touching the wrong subject here, अगर आपके coaches आपको एक plan देते हैं तो आप उस plan पे अमल भी करो. मेरा क्वेश्चन है वैसे इन दोनों से. मैं फिर आगे चलूं. आप दोनों कोचेस थे जब बाबर कप्तान था. या ऐसा ही है. सो आप उसको प्लान तो देते होगे, मैचअप्स एंड एवरीथिंग. क्या वो मानता था पूरे प्लान के, कभी अपनी भी मर्जी कर लेता था दरमियान में? देखिए, मैंने कल भी एक बात कही कि आप अपने ए प्लान तो एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और ए प्लान जब तक ठीक चल रहा है तो आपको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है. Sure. बट अनफॉर्चुनेटली जब हम भी थे और अभी भी, मसला उस वक्त हो रहा है जब हम अंडर प्रेशर होते हैं, जब हमारे वो ए प्लान्स नहीं वर्क करते. देन इन द मिडल व्हेन वी हैव टू डिसाइड कि अब हमने क्या करना है. जब आप पे अपोजिशन काउंटर अटैक करती है, देन पिछले जितने भी मैचेस हैं उस दौर में भी हम भी जब थे तो उस वक्त हमने चोक किया है, और स्टिल इट्स हैपनिंग. और ये होना ही होना है. वर्ल्ड कप में आप पे प्रेशर आना है. अब बड़े टूर्नामेंट बड़ी टीम के साथ जब भी खेलेंगे, ये नहीं हो सकता कि अगली टीम कम बैक ही ना करे. बिकॉज ऑल ऑफ यू कोचेज, द स्टाफ, द जो भी आप इंफॉर्मेशन आप देते हैं आगे कप्तान को, यू आर देयर टू हेल्प हिम. बिकॉज इफ टीम विंस, एवरीबडी विंस. एम आई राइट? सो आजकल के दौर में, इस डे एंड एज में, एवरी टीम वर्क्स ऑन दिस, द डेटा, द मैचअप्स. That's everybody does this. So I think if I was Babar, I will learn how to even read. I mean, not read, but understand if I don't understand. Sometimes जब खेल रहे होते हैं इन चीज़ों को नोट नहीं करते, but you understand what coaches are trying to say. They're trying to help me. They're trying to give me a cushion. They're trying to give me a plan A, plan B, plan C. But like Misbah said, अगर आप एक प्लान से गए हो, अगर आपका प्लान भी नहीं है, जो इंडिया के खिलाफ हमें नजर आया आखिरी ओवर में, वो कीपर पीछे खड़ा हो गया, प्रेडिक्टेबल हो गए, नवाज को कहा तुम मीडियम पेस करो. सो दैट साउंडेड लाइक टू लुक लाइक कि कोई प्लान था ही नहीं, उसी वक्त बना है. Look, I think coaches जितने भी होते हैं, they try their best. They give the best what they have, and I think it was a very good question. I think Wasim bhai, you also chip in because you also got an experience of working with Babar in Karachi. And what was your experience with him? You know, he's been captain what, 2 years, I guess. मैं कोई महीना था उसके साथ. जी. Oh, we just lost 8 games out of 8, so there was no plan. I think after 7 games we were all lost. So the plans were not given. No, we had all I'm saying is that the plans were not given to him. Or आपने तो वो बात कर दी, तू 10. नहीं, मैंने कहा आपने पूछा ना, तो मैंने कहा आपने बहुत से जो आप दे देता है मैंने दिया कि we tried our best, we gave our best shot. And जैसे विक्की बताता था बचपन में स्टोरी अपने स्कूल की, कि अपने किसी की मेरा टीचर था इनका मैथ का एक, रिमेंबर? तो कहता था कि वो उसको एक मुश्किल सवाल बताता था, मुझसे कहते थे सर जी इसका जवाब क्या है, कैसे करना, तो टीचर कहते थे तू 10. सो वही विक्की ने मेरे साथ किया है. तू 10. The counter question, you know. The counter question. Right. So, coming back to this Perth pitch in Pakistan now having to play 2 games here back to back. Wasim is very right that we shouldn't be panicking and all that. No, not at all. We do have to keep in mind that Paul Mikren bowls 140 plus Misbah, and you know. अब यही डरना है तो फिर रहने दो. मैं यही कहूँगा कि अगर हम इन टीमों के खिलाफ यहाँ पे खेलते, नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा कंसर्न होता हमारे लिए, बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट अनबीटेबल देयर. उनको अपनी कंडीशंस, फिर इंग्लैंड, एंड देन द थर्ड टीम मे बी साउथ अफ्रीका. ये 3 टीमें ऐसी थी जिनके अगेंस्ट अगर हम यहाँ पे खेलते तो वाकई में उनको एडवांटेज होता, और बड़ा एडवांटेज होता. बट आई थिंक प्लेइंग अगेंस्ट जिम्बाब्वे हेयर, पाकिस्तान को ज़्यादा एडवांटेज है. सही. बट आई थिंक दे नीड टू जस्ट बेसिकली सिलेक्ट द राइट टीम. पर्थ में आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ नहीं खेल सकते, कंसिडरिंग कि जिम्बाब्वे दे प्ले स्पिनर्स वेल.
वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, उन कंडीशंस को अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं। वो पेस के अगेंस्ट हमने लास्ट मैच में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका देखा कि उनको शॉर्ट बॉलों पे फंसा लिया था। सो दैट शुड बी बेसिकली द वे टू गो। नीदरलैंड की भी अगर देखें बॉलिंग चैलेंज करेगी उनकी थोड़ा सा पाकिस्तान को, बट वो ऐसी नहीं है जैसी साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की है। बट पाकिस्तान उनको जैसे तस्कीन ने उनको मुसीबत में डाला है, तो पाकिस्तान के पास ज़्यादा चांसेस है उनकी बैटिंग को फास्ट बॉलिंग के थ्रू फंसाने। दो ही लफ्ज़ों में ना इसकी वो हम बंद कर सकते हैं इसको कि अगर नीदरलैंड्स और जिम्बाब्वे हमारे अगेंस्ट 150 के आसपास रन्स करेंगे तो बहुत चैलेंजिंग होगा इस पिच पे। अगर हम उनका जो बॉलर्स हैं वो देखें, मीडियम पेसर्स हैं, बीच में थोड़े हैं तेज़ बॉलर भी, तो हम तंग हो सकते हैं। राइट, फेयर इनफ, दैट्स इट। बट हिज रोजे में ही बंद कर दिया। हाँ, पर छोटी सी बात है। छोटी सी बात ही तू 10 to us quickly. So Misbah, you pointed out कि हमें हम 3 फास्ट बॉलर से ज़्यादा नहीं खेल सकते, तो हमें एक और फास्ट बॉलर लाना पड़ेगा, which leaves us with Wasim Jr. then, I guess. he can bat too, he can whack. Yeah. So that's our automatic वो. हम लोग साथ में बैट्समैन भी चाह रहे हैं या प्योर बॉलर चाह रहे हैं? I suppose if I'm captain, I'll rather have the guy who can whack couple of deliveries maybe. Pure bowler कौन है और पांचवा? मुझे लगता है कि हसनैन भी खेल सकता है। मुझे लगता है वसीम का आपको ऑल राउंड एडवांटेज है। फील्डर भी वो इन सब फास्ट बॉलरों में से सबसे अच्छा फील्डर है। हसनैन को छुपाना पड़ेगा। और आपको जाहिर है कि आपने ये भी देखना है कि नया बॉल किससे कराना है। बेसिकली अगर नसीम ने और शाहीन ने नया बॉल करना है, देन ऑब्वियसली वसीम जूनियर कम्स इन, के जो बाद में आके चेंज पे बॉलिंग करेगा, क्योंकि हसनैन भी नया बॉल करता है, तो देन खिला सकते हैं आप 2-2 ओवर तीनों कर सकते हैं। हसनैन एक्चुअली you good point. Last year he did well in Big Bash. He's got 7 wickets in 5 games. देखिए अगर आपके पास 140 प्लस वाला बॉलर है इस पिच पे, तो अगर हम इस सोच में जा रहे हैं कि हम हसनैन नया बॉल कौन करेगा, तो नहीं, मेरे ख्याल में वो 6 के बाद ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं। आई थिंक बॉल दिखाएं जरा एक सेकंड, क्योंकि जो मैंने आपने दूसरा कोच भी किया है, जब मैं हसनैन को देखता हूँ ना, बीइंग अ बॉलर, एक्स बॉलर, सो कई जब वो बॉल करता है यहाँ से हाई आर्म से, अगर आप दिखा सकेंगे, जूम आउट कीजिएगा कैमरा थोड़ा सा, या कैमरा अगर हाई आर्म से दिखा दोबारा सकेंगे, फ्रेम बनाएं और दिखाएं आप जरा, ये यहाँ से अगर दिखाएं, वो यहाँ से जब करता है तो ठीक आता है। जब उसको 1-2 मार पड़ती है, उसका बाजू आ जाता है यहाँ पे, साइड पे, जब यहाँ पे आता है तो एक तो उसकी स्विंग खत्म हो जाती है, और एक प्लस इसका ड्रिफ्ट बॉल लात की तरफ चला जाता है। दैट्स व्हाट आई हैव नोटिस्ड। समटाइम्स उसकी ना रन अप में कंसिस्टेंसी नहीं है। द डे इज रनिंग रियली वेल, इज गेटिंग टू द क्रीज मच बेटर, स्ट्राइड्स उसके बैलेंस्ड होते हैं, तो देन ही इज लीथल। और स्पेशली विद द न्यू बॉल, यू नो, सिंस ही स्टार्टेड बॉलिंग दैट आउट स्विंगर्स। बॉल के साथ दिखाएं ना। नहीं बॉल नहीं, जिससे मैं भाग नहीं सकता, वरना मैं आपको स्ट्राइड करके दिखाता था। सो बेसिकली दैट्स व्हाट आई फील कि जब वो व्हेन ही इज कंफर्टेबल रनिंग थ्रू, और उसका इशू नया बॉल का इतना नहीं है। नए बॉल में इज वेरी लीथल, इट्स जस्ट व्हेन द बॉल गेट्स ओल्डर, then he struggles for his length, and he doesn't really have that really quality I think slow in his delivery. defense he kind of been through a lot for 6 he's been through a lot. पहले 6-7 इसका months. you know वसीम भाई, इसका ना उससे before he played for Pakistan, somebody sent me a clip of his when he was, you know, before he got injured. He had a major ankle issue, broken issue, and he was so close to the stumps. He was nice and upright and used to go through. And then once his ankle, he had issues. Then he opened his front foot, and then club cricket खेलता रहा, वो इतना set हो गया, and then now he lands. Foot lands like that. चला जाता है, okay. So उसका जो जितना सारा लोड है वो एंकल के अंदर की साइड पे पड़ता है। नॉर्मली मेरा जो था वो बाहर की साइड पे पड़ता है, and I used to pivot on it. उसका बाहर पड़ता है, इस जगह पड़ता है। तो sometime ये भी एक इशू है, क्योंकि once you have those footholds there ना, तो if it goes wrong there, and then you're always worried, scared, so then फिर आप you know shuffle करते रहते हो उस क्रीज के अंदर, then you can't really bowl from where you exactly want to. So that also issue with him sometimes. All right, with that, we're going to take a break here in the Pavilion. We'll see you on the other side. Keep watching A Sports, 10 Sports, and the ARY Zap app.
Welcome back to Pavilion. मैं हूं फखर आलम और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप. With me, Shoaib Malik, Misbah-ul-Haq, Waqar Younis, and Wasim Akram. We were talking about the new bowler, whether Hasnain should be the one or whether it should be Wasim Jr. and all that. I think clearly we need to really reconsider that situation. Waqar, you wanted to ask something of Wasim, you were telling me in the break. I mean, we discuss a lot of off-air or green room में भी हम बात करते रहते हैं. You know, all these bowlers. What are their good points, how they can improve, and a lot of plenty, because learning never stops, as they say. ठीक है. So मैंने वसीम भाई से अचानक ऐसे सवाल अभी पूछा थोड़ी देर पहले. मैंने कहा वसीम भाई कि you used to use this finger or not, क्योंकि मैंने later on age में जब मैंने वसीम भाई जब मैंने learn कर लिया ना new ball, sure. तो normally I used to hold Close up, please. I'm straight, and Close I used up. to Close up. There you go. and I know you used to have this thumb close. Yeah. I never used to be. मेरे से नहीं होता था इस तरह ball. I used to always have this. That's why I still got this part very hard. So I used to really keep that very simple. चंडी पे आ गई. Yeah, kind of. And then the spinner नहीं नहीं fast पर नहीं मेरे यहाँ होती है. and then I used to use this finger a lot to support my support the ball to just have तूने मुझे a उस वक्त भी stability. बताया जब हम खेलते थे. जब मैंने swing करना शुरू किया, that's when I started learning. Okay. और मैं तो उस वक्त की दसदा थोड़ा आप एडा स्विंग होता ਸੀ ना. अगर मैं थोड़ा दोस्त को 10 दिन तो सारा थोड़ा खराब हो जाना सिलसिला. हाँ एक्सप्लेन करो फिंगर से होता क्या था ये देखिए ये मेरा मानना है. सम बॉलर्स के कईयों को मैंने काफी लड़कों को आप कह रहे हैं तो इसमें हेल्प भी किया है, क्योंकि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ जस्ट लर्नड इट. बेसिकली होता क्या है कि ये बेसिकली ये दो फिंगर वेस्ट होती हैं नॉर्मली, जो कहते हैं ना. अच्छा जी वेस्ट इंडियन बॉलर यहाँ होल्ड करते थे बॉल, उनकी ये फिंगर्स टच भी नहीं करती थी ना. मेरा बिलीव है, मेरा मानना है, मैंने क्या किया ओवर द ईयर्स स्पेशली व्हेन आई लर्न द न्यू बॉल, मेरा मानना है कि ये थर्ड फिंगर है ना, इसका रोल है इसमें बॉलिंग में. एंड दैट इज यू जस्ट सपोर्ट दिस जस्ट टू गेट दिस आउट स्विंगर गोइंग. when you release the ball, this should support the ball. Support the ball कि आपका हाथ का जो टूटता है ना, wrist ना टूटे. So you just go boom, support the ball with this, so your seam come out nice and straight or nice and little bit tilted, जो कि out swinger आपका होता है, especially for an out swinger. In swinger probably I used to still hold it, but I used to sort of मेरे इन स्विंगर कभी भी नहीं था नए बॉल से. आई यूज्ड टू मेक श्योर कि जी आउट स्विंग होता क्रॉस ऐसे पकड़ के बॉल स्विंग ना हो. एंड दैट वाज रियली गुड इनफ फॉर मी. पेस में फर्क पड़ता था कि भाई जब आप थर्ड फिंगर नहीं पेस. नहीं, जब मैंने आउट स्विंग सीखी थी तो मैं ये वाली फिंगर यूज करता था. क्यों हो गया नॉन क्रिकेटर में बैठ के ना पाने कैच छोड़ देते. सो मैं आई यूज टू यूज दिस फिंगर फॉर आउट स्विंग. ये मैं कई दफ़ा ऊपर करके तो इसको मैं यहाँ से नीचे से मारता था. ओके. ये ऐसे करके. और शुरू में जब मैंने आउट स्विंग सीखी, पहले तो मैं इन स्विंग करता था, वो जो आती थी नेचुरल थी. फिर मैंने देखा 92 के बाद मैंने एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया 93 हम जब जावेद भाई कप्तान थे, ट्राई सीरीज थी जो हमें बड़ी प्रकाश पड़ी थी, उस पर ये सीखा था. मैं नेट में खड़ा होकर ना आहिस्ता आहिस्ता खुद ही, कोई कोच नहीं, किसी ने नहीं बताया. मैंने कहा आउट स्विंग सीखनी है, मेरे को सारे अंदर के लिए तैयार होते हैं. सो मैं नेट में खड़ा होकर खड़ा मैं रिस्ट को आके ऐसे दो कदमों से खड़े पहले हल्की सी वो बाहर निकलनी शुरू हुई, थोड़ी एक्साइटमेंट हुई. फिर थोड़े 4 कदमों से किया, एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा, 4 कदमों से, फिर 5 कदमों से, फिर शुरू में फिर रन अप पूरे से किया तो कंट्रोल नहीं था आ रहा. फिर 7 कदमों से नॉर्मल रन अप, नॉर्मल हाँ 7.5 कदमों से. सो फिर कंट्रोल नहीं था आ रहा मुझे. बट और पेस मेरी कम हो रही थी, बिकॉज देन आई रियलाइज कि मेरे जो ये मसल्स थे पहले कभी यूज नहीं थे हुए. इन स्विंग के लिए सारे इधर से यूज हो रहे थे. सो इवेंचुअली नेट में कर के मैंने उसी सीरीज में आउट स्विंग की और हुई, मगर पेस नहीं हुई. पर इवेंचुअली कर के आफ्टर 6 मंथ नेट्स में कंट्रोल भी आ गया, पेस भी आ गई वापस. और कंट्रोल ऐसा आया कि मैं उनको फिर ऐसे भी पकड़ के यहाँ से ऐसे भी कर देता था, ज़्यादा भी कई दफ़ा कर देता था, फ्लिक कर कई दफ़ा कम. जब मैं ऊपर से हाथ लाता था तो मैं ऐसे मारता था सीधा, ताकि सीम हो. जब स्विंग करना हो तो मैं पूरा ऐसे. आपका एक्शन थोड़ा सा चेंज होता था, हल्का सा पीछे से आके ऐसे होता था. लेकिन आपको चंडी तो नहीं पड़ी आप? नहीं, चंडी मुझे यहाँ पड़ी थी. क्यों? ये पकड़, मैं बॉल ऐसे पकड़ता था, देखिए मेरा अंगूठा नीचे बिल्कुल पीछे जाता था. सो दैट्स वाई यहाँ से अंगूठे का आपके वो क्या कहते हैं उसको,
गुठली सी बन जाती वही है। चंडी। Well, there you have it. The two W's, the great legends, right here in the pavilion, discussing some very intriguing and little details. Remember, the devil is always in the details. Misbah, let me bring this to you. What is the way forward for Sri Lanka and the rest of the tournament? I think way forward तो simple है हर टीम का यहाँ से they want to basically win the games. Obviously they are not playing against Australia. जो भी आगे oppositions उनके सामने आती हैं, especially मेरा ख्याल में बड़ा tough pool मैं कहूँगा. और Australian conditions में they still have to face England, उसके बाद साउथ अफ्रीका. सो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि मीडियम पे सर एक और उनका फास्ट बॉलर आज इंजर्ड हो गया. दैट इज़ बिगर कंसर्न फॉर देम. अब इन कंडीशंस में अगर आपने मैचेस खेलने और आपके पास पेसर्स नहीं हैं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है. एंड देन ऑब्वियसली बैटिंग जो आज एक चीज़ नज़र आई है उनकी अगेंस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पेस बाउंस they struggled, so they need to just score runs. सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में जो उनके लिए कंसर्न है बैटिंग में राजा पक्षा जो कि स्कोर नहीं कर रहे, जिस पे बहुत ज़्यादा वो डिपेंड करते हैं. आई थिंक थोड़ा सा श्रीलंका के लिए प्रॉब्लम्स आज के मैच में बड़ी हैं, जिसकी वजह से उनको लगा होगा कि थोड़ा जैसे कॉन्फिडेंस आपका शैटर होता है. मैच हारना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जो इंजरी स्पेशली और फिर पेस और बाउंस के अगेंस्ट जो ओवरऑल उन्होंने स्ट्रगल किया और फिर उनके स्पिनर्स को जिस तरीके से आज मार पड़ी है जिन पे वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो मेरे ख्याल में उनके लिए थोड़े से कंसर्न्स ज़्यादा वाज़ेह तौर पे सामने हैं. And with that, it's time for another break in the pavilion. Keep watching A Sports, 10 Sports, and the ARY's app. Welcome back to the pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं A Sports and 10 Sports and the ARY's app. Continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup with me, Shoaib Malik, Misbah-ul-Haq, Waqar Younis, and Wasim Akram. Let's talk how important off spin is, because it was wrist spin जिसका हमने शुरू में देख लिया था कि ऑस्ट्रेलिया में economy rate wasn't as good as finger spinners. But Shoaib, you wanted to talk about off spin. ऑफ स्पिन का यही है, जो बैट्समैन मोस्टली टॉप एजेस लग रहे हैं वो इसलिए लग रहे हैं कि हम कंडीशन को असेस नहीं कर रहे. हम लोग जो बैट्समैन जिनके भी एजेस लग रहे हैं, टॉप एजेस लग रहे हैं, वो इसलिए लग रहे हैं कि इस तरफ जैसे ऑफ स्पिनर आता है ना तो दिल और दिमाग जो है ना वो बैट्समैन का ये सोचना शुरू कर देता है हार गई यदि विद द स्पिन जो है मैं इसको ना या मारूंगा मिड ऑन की तरफ या को कॉर्नर या मिड विकेट की तरफ. तो मोस्टली ऑफ स्पिनर जो है ना वो राउंड द विकेट गेन कर रहे हैं, और वो राउंड द विकेट जो है ना वो गेन एक तो ड्रिफ्ट हो रहा है और पिच पे हिट होने के बाद भी वो एक स्लाइडर स्लिप्स की तरफ जा रहा है. थैंक यू. खेले हुए हैं क्रिकेट बहुत. चलें आगे. स्लाइडर अपनी जात में बहुत बड़ी अंजुमन है. तो वो ना क्रॉस जा रहे हैं जिसकी वजह से वो टॉप एजेस लग रहे हैं और ऑफ स्पिनर्स को सक्सेस मिल रही है. तो आई गेस उसको अगर आप सीधा सामने खेलें या मिड ऑफ टुवर्ड्स मिड ऑफ, अगर आप सिमिलर कंडीशंस पे खेल रहे हैं जो पर्थ की हम लोगों ने देखी है, तो उस पे सक्सेस मिलेगी बैट्समैन. जैसे फिंच ने बाद में उसको सामने मारा है, फिंच ने मारा है, और जो मिच मार्श भी आउट हुआ है वो 2-3 दफा उनको चांसेस मिले हैं, लेकिन वो थर्ड टाइम पे जाके आउट हो गए. आपकी स्क्रीन पे पेश करते हैं जरा. लेट्स टेक अ लुक एट दिस ओवर दैट वी हैव सेट अप फॉर यू. ब्रिंग इट आउट इन योर स्क्रीन्स एंड शोएब यू कैन टेक अस थ्रू. ये देखें, ये शॉट शनाका ने ट्राई किया, वो इसलिए ट्राई किया कि ऑफ स्पिनर था, बाहर की तरफ गए तो बीट हो गए. अब ये देखें, ये जिस बॉल पे आउट हुए हैं, ये अगर सामने जाते या मिड ऑफ की तरफ जाते तो ये आराम से 6 रन मिलते. तो यही हुआ. और जब धनंजय भी आए हैं तो मिच मार्श भी यही मिस्टेक कर रहे थे. इवन फिंच ने भी 1-2 दफ़ा यही सेम मिस्टेक की कि वो ऑन साइड की तरफ जा रहे थे. ये देख लेते हैं जो आप जिसकी बात कर रहे थे. दिस कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन नाउ. ये तो खैर टांग पे बॉल था, ये उन्होंने रिवर्स स्वीप ट्राई की. ये देखें ये भी सामने शॉट लग सकता था क्योंकि टर्न नहीं हो रहा बॉल. खैर कैच ड्रॉप हो गया.
Yeah, they और ये dropped मेरे couple ख्याल of में इनको crucial कॉस्ट भी catches. किया है ये वाला कैच, अगर इस टाइम पे आउट होता हाँ एक तो स्कोर बहुत पे फर्क था, फिर पड़ता। वो 18 कर गया। ये देखें, फिर वही ये भी ये था थोड़ा सा बीच में बॉल, लेकिन सामने जाते, क्योंकि बॉल जो फिनिश हो रहा है ना, वो जब स्लाइडर बन जाता है पिच पे हिट होने के बाद, तो स्लाइडर का मकसद ये है कि वो राइटी से अवे अवे जाए, जाएगा, बिल्कुल ऐसे तो ही। इस वजह से ये टॉप एज इसमें भी इनसाइड द लाइन बैट रह गया और गेंद थोड़ा सा बाहर की बाहर तरफ। की तरफ रहा, क्योंकि पिच पे लगने के बाद ना बॉल स्लाइडर बन रहा था और बाहर की तरफ जा रहा था। Yeah, that's a good point. Then naturally वो across the line hit करने के पे top edges लग रही थी आपकी। वसीम, what is the best way for power hitting in these big grounds? In your heydays, you've cleared these fences really well. Yeah, Why don't I we did see that actually. anymore nowadays? I don't know, nowadays techniques are different, much better than our days. The bats are much better, yeah. I think हमारे डंड जरा बड़े होते थे. Just kidding. नहीं बैट्स सर, आप बैटिंग का डिफरेंस देख लें. I suppose our दौर was pure power and of course वो था कि eye on the ball till the last minute. और मैं निकलता कम था फास्ट बॉलर को, कोशिश कर रहा था खड़े खड़े मारूं, और मेरी ये कोशिश होती थी कि मैं फॉलो थ्रू करूं. अगर मेरे एरिया में गेंद आ गया तो मैं सीधा जाऊंगा और फॉलो थ्रू मेरा पूरा जाएगा ऐसे करके. गोल्फ की तरह नहीं, बट यहाँ रुकेगा वो आके. वैसे आपके वसीम भाई, ऑस्ट्रेलिया में आपके बहुत सारे बैट्समैन से ज़्यादा रन ऑस्ट्रेलिया में. जी है ना? सिंह भाई मैंने देखा है, मेरे ख्याल में एक तो जाहिर है लॉन्ग लीवर्स, पावर डेफिनेटली, Yeah. जो आपके छक्के होते थे वो बड़े होते थे। ज़्यादातर ग्राउंड के बाहर ही जाते थे. एंड ऑब्वियसली जो आज मॉडर्न क्रिकेट में भी आप देखें, बैट स्पीड भी आपकी ठीक ठाक थी. Yeah. इवन जो फाइनल आपने जो जितने भी शॉट खेले थे 92 में, दैट वाज, आई मीन अगर आप आज भी देखें वो बड़ा तेज़ बैट घूम रहा था जो And मेरा बल्ला इंच was longer blade than the average cricketer, average जैसे वकार या इजाज या all these batsmen used to use. Mine always was inch longer. My blade was inch longer. I don't know why I जहाज had it. भाई तो छोटे हैंडल से खेलते हैं ना. या इजाज हैंडल कटवा लेता था अपना. अगर ये हैंडल का साइज है तो इजाज आई थिंक अद्धा कटवा 2-3 इंच 2-3 इंच वो कटाता था अपना बल्ला. तो कुछ का बल्ला यूज ही नहीं था कर पाता बिकॉज इट वाज सच अ स्मॉल हैंडल, बट ही वाज लीथल. इजाज भाई की स्टोरी मुझे याद आ गई, तो मैं सुनाता हूँ. 2007 में हम लोग वर्ल्ड कप 50 ओवर्स खेलने वेस्ट इंडीज़ जा रहे थे, तो रमीज़ भाई ने एक प्रोग्राम होस्ट किया था लम्स में, लाहौर में. तो वो एक 92 वर्ल्ड कप के जो प्लेयर्स थे, एक वो होते थे और एक जो जा रहे थे 2007 में. मैं इजाज़ भाई के साथ था. अब तो रमीज़ भाई ने क्वेश्चन किया इजाज़ भाई से कि यार मैं ज़रा यहाँ हाँ जी, बिल्कुल डेमो दे लूँ, बैट भी अगर ले लूँ ले तो ले ज़्यादा जाए, अच्छा उधर हो फिर जाएगा. दीजिएगा डेमो, उधर ही डेमो फिर उधर ही डेमो दीजिएगा और उधर ही रुकिएगा. स्टांस भी दसना है जहाज भाई. वो इस तरह ये स्टांस था ना उनका, और उनके पैर दोनों यूं खुलते थे तो बैट बीच में लगता था यूं जाके यहाँ पे, वरना नहीं लग सकता था, वो पैर पे ही लग जाना था. तो रमीज भाई ने कहा कि इजाज ये कौन सा आपका ये स्टांस है ये वाला. तो उन्होंने कहा कि रमीज भाई मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार ये कौन सा स्टांस है, कौन ऐसे खड़े होता है और फिर यूं करता है. तो उन्होंने कहा कि यार ये बैट किसका है. उन्होंने कहा इजाज़ भी आपका है. उन्होंने कहा ये पैर किसके हैं. उन्होंने कहा जी आपके हैं. कह रहे हैं खेलेगा कौन. कह रहे हैं आप खेलेंगे. तो कह रहे हैं मैं बैट यहाँ रखूँ या यहाँ रखूँ या कहीं भी रखूँ, मेरा बैट है, मेरी मर्जी है. You know, Ijaz was kind of a legend, especially up north in England. Yeah. Red Car, I think he played for quite a bit of cricket, and he was a huge, big name there in that area. It's up north, Yorkshire. आगे जाके है Yorkshire A1 आपकी एंड तक जाती है, वहाँ पे रेड कार है. went to see जहाज भाई ने बहुत सारी लीग but he was big. उसने वहाँ तब बात कर रहा हूँ मैं, mid-90s की बात कर रहा हूँ मैं, लीग के 20 ओवर के मैच में 230 किया था अकेले ने. Then जब स्टांस दूसरा होता था जो stance I don't know, but he was, I mean I saw his changed lot of innings. He's stance got 12 lot of test time. hundreds and 6 against them against Australia. in Australia. And 3 in Australia.
So I mean, he was a very, I mean, उसकी killing straight away जो ज़हन में आती है. I didn't play that game. I think I was injured. वो जो लाहौर में उसने इंडिया के खिलाफ 140 जो किया After था. coming from Canada. 25 ओवरों में इन्होंने 200 कुछ कर दिया था आप लोगों ने. वो उसकी भी एक स्टोरी है छोटी सी. क्या? वो एक इंडिया का एक फास्ट बॉलर होता था महांती. है. उसने ना वो आया तो वो कनाडा में पहली दफ़ा उसका डेब्यू हुआ. फर्स्ट टाइम सीइंग हिम, यू नो, वेरी फाइन बॉलर, वेरी गुड सीम बॉलर ना. तो वो उसने 5 आउट किए. अब उन ज़माने में शाम को इकट्ठे हो जाते तो जडेजा उसको लेके आ गया मेरे कमरे में कि इन्हों कुछ दस, जस्ट टू गाइड हिम थ्रू. तो इजाज़ भाई भी वहाँ बैठे थे. तो मैंने उसको कहा, मैं इसको क्या बताऊँ, इसने 5 आउट किए हुए. इज़ अ वेरी गुड बॉलर, बड़ी अच्छी सीम पोजीशन है, हर चीज़, एवरीथिंग गोइंग फॉर हिम. तो इजाज़ भाई पीछे बैठे सन, कहते तू लाहौर आई, मैं तेन दसा. I remember you told me this story before, and he did. And he came to Lahore and he never played for India after that. तू दस तू आ लाहौर, मैं तेरे लाहौर दसांगा. That's tricky. And with that, we're going to take a break right here on the Pavilion. याद रहे कि ब्रेक के बाद Ask the Pavilion, #Ask the Pavilion, आपके सवालात और लेजेंड से कुछ जवाबात देखते रहिए. The Pavilion on A Sports and 10 Sports and the ARY Zap app. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports 10 Sports, and it's time for Ask the Pavilion. We're almost getting ready to take your questions with me in the studio. Can I just say one Yes, thing please. before we get to this Ask the Pavilion? Gigi, please. You know, we are sharing stories and we're going to share stories in the next couple of weeks also, Yeah. till the time this World Cup is. And we are going to share story about our ex-cricketers, or no offense, and we in advance apologize अगर किसी को कोई बात को बुरी लगी हो या आइंदा आने वाले वक्तों में लगे, because it's all out of love, because we all respect them, we all love them, and we've been colleagues, you know. So तो फिर ना सुनाओ. go on. जी, हमने तो लपेट दी है. वसीम भाई. दो चार लफ्ज़ अभी मैं आपको काश व्यूअर्स को ये बता सकूं ना कि ये ब्रेक में क्या होता है. You'll be very, very surprised. Yes. We get to hear some very fantastic stories, some great history about cricket, which you will never find in any book anywhere in the cricketing world. Time for Ask the Pavilion. शुरू करते हैं और we've got a lot of questions coming in. And okay, so straight away, Khalid Jilani सवाल कर रहे हैं. You are praising Ijaz bhai. My question is why he can't play Pollock and McGrath bowling with the bat, always with pad or caught behind. चलें जी, straight away इजाज अहमद के ऊपर आपसे सवाल आ गया है. Pollock and who? Pollock and McGrath. इससे दोनों को फटकाया भी ठीक ठाक हुआ है. Probably have one of those off days. Yeah. Probably that's why. But I mean, he was. ऑस्ट्रेलिया में. Yeah, 600 हैं भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 3 ऑस्ट्रेलिया में है, so उसमें मगरा भी शामिल था. I think 96 में भी या 99. Yeah, Warner भी था, McGrath भी था. He's played some extraordinary. यार एक क्वेश्चन, अब अभी वीडियोस हम दिखा नहीं सकते. इसका सर वो बड़ा लंबा एक इशू है. आई नो, मैं बता देता हूँ उस लड़के को. उसका नाम है अली हसन गुज्जर. उन्होंने मुझे अपनी वीडियो भेजी, अगर आप देखें. जी देखिए मैंने यहाँ पे वो वीडियो पे. बेटा आपका एक्शन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बट आप मिट्टी में बॉलिंग कर रहे हो तो स्पाइक्स नहीं है, तो आपका बॉल स्लिप हो रहा है. आपका फ्रंट फुट बिल्कुल ठीक है. अगर आप हमें वीडियो पे जो आएंगे जिस पे अगर स्पाइक आपके पास हैं, अगर आप उसके साथ बॉलिंग करोगे ताकि जिस आम पे, जिस फुट पाँव पे आप लैंड कर रहे हो वो स्लिप ना हो. सो आपका जंप भी ठीक लग रहा है मुझे, आपका गैदर भी ठीक लग रहा है, बट आई कांट टेल बिकॉज आप स्लिप कर रहे हो, स्पाइक्स नहीं पहने हुए. बेटा दैट्स द फर्स्ट स्टेप. ट्राई टू. I think it's a great idea. You know, kids can send their videos. जी हाँ, and बिल्कुल. We can have a look, but we can't show it there. We can figure that out. I mean, something We'll has work to be it done. out. Production is already working on it. I know that they wanted to do something. वर्ल्ड कप तो पहले कर लेना. चलें जनाब, बिल्कुल खत्म सही हो है. तो. My question is from Double M. Who's Double M? I think Malik and Misbah, I think you'll be the Double M because these are the two W's, right? Don't you guys think we need players who can play ground shots better in Australian conditions other than Asif and Heather, because both are not good at playing ground shots and finding gaps? Khushdil is good at ground shots. Ask the Pavilion, Wasim Abbas का सवाल है to both the Double M's. Double M's, जवाब दीजिए. Big M will answer this, and then
चलिए जी, I'll begin. take over. आई थिंक कि वही बात हो रही है कि हम किसी को पावर हिटर के तौर पे खिला रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि वो आगे ग्राउंड शॉट्स खेले। तो मुझे लगता है कि जो नंबर 6 पे खेलता रहा एंड पे आके 3 से 4 ओवर खेलता है, तो ऑब्वियसली यू नीड दैट सॉर्ट ऑफ प्लेयर से आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े शॉट्स मारे या छक्के मारे। आई थिंक दैट इज़ बेसिकली देयर रोल। और मुझे लगता है इनसे जो प्रीवियस जो रिकॉर्ड्स हैं इन्हीं के हैं, बेहतर इन्होंने ही किया हुआ है। ऑब्वियसली डिफरेंट कंडीशन है वो नहीं कर पा रहे, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। आप उस नंबर पे किसी ऐसे प्लेयर को भी भेजेंगे कि जो रन बॉल करेगा या 7-8 रन कर लेगा ग्राउंडेड शॉट्स मार के, तो वो आपका जो मकसद है उस नंबर का वो सर्व नहीं होगा। आतिफ खान का सवाल है आज द पेविलियन से कि क्या इज शाहीन शाह फुल्ली फिट? He doesn't look like he's in his top-notch form. Should he be the one who to be replaced? How can you replace Shaheen Afridi अगर वो 15 के स्क्वाड में है, अगर वो अवेलेबल है, you have to pick him up. He is your best bowler. Okay, his lack of match practice, I understand. वो नज़र आया हमें, थोड़ा सा फिटनेस का भी है बिकॉज अभी 2 महीने उसने रिहैब किया, 2-2.5 महीने, तो टाइम लगता है थोड़ा। I think knowing Shaheen and his talent and his skill level, एक आधे मैच के बाद उसका रिदम वापस आ जाना चाहिए इंशाल्लाह। All right, we have. Okay, so this is a question. This is for you, Wasim. Somebody has found pictures of you from an interview in 1992. Yeah. You have your hair completely gelled back. हम ये तस्वीरें में यहाँ दिखा नहीं सकते। क्यों? ये तस्वीर नहीं दिखा सकते। जली लाई हो, ये औरतें कुछ नहीं कीता है ना। नहीं, तस्वीर बहुत अच्छी है आपकी। Got me. Okay. So anyway, so the guy was basically asking कि इस तस्वीर में आपकी बड़ी जो है लुक जो है वो रॉबर्ट De Niro टाइप की है। Were you a fan of Robert De Niro? That's the question. Show me the picture first. Here you go. Robert De Niro? Robert De Niro, Hollywood Robert De Niro. Nice. ये वाली की बात कर रहा है यार। तब ब्रिल क्रीम नई आई थी भाई और फैशन में थी। अच्छा। और डैड की डब्बी चोरी करके लेके गया था। रॉबर्ट डे नीरो को तब इतना पता नहीं था, फिल्मों का बाद में आके पता लगा एक्टर्स का। Brill Cream was very famous Huge. at your place, huh? Massive. Remember All I used three to put- brothers. Yeah, all of चोपड़ के What do you आते mean? What do you mean all three थे। जैसे ये brothers? नहीं आता जेल चोपड़ के, मैं भी 3 brothers and dad also. डैडी भी गाते थे यार। Okay, all right, great. जैसे आप सुना रहे हैं ऐसा लग रहा है 101 साल हो गए हैं। पुरानी बात है। बात तो पुरानी है। नबील अकरम मिनहास, वसीम अकरम, you were so successful in LPL, in IPL in Calcutta Knight Riders team as a coach. If any role given by PCB, would you be happy to consider that or not? Nabeel Akram Minhas. यार नबील अकरम मिनास। नबील ये क्वेश्चन बहुत लोग अभी भी पूछते हैं और आई सपोज आपको हक है हर क्वेश्चन पूछने का। कोचिंग एक बड़ी डिफरेंट स्किल है, वो भी पाकिस्तान टीम की। पाकिस्तान टीम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है जब ये आप लोग जो क्रिकेट लवर्स हैं जो अपने कोचेस से और प्लेयरों से बदतमीज़ी करते हो, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। आई विल हैव अ गो एट यू गाइज बैक। आई मीन क्रिटिसाइज ज़रूर करो कोच को, बट एक तरीका होता है क्रिटिसिज्म का। एक खुद ही मेज़ गंदे से बना के खुद ही अपने प्लेयर को उड़ाना, सो वो एट माई एज आई कांट टेक दैट स्ट्रेस। सो हैंस आई एम हैप्पी वेयर आई एम एंड आई थिंक पाकिस्तान टीम इज़ इन गुड हैंड्स। ऑलराइट, डॉक्टर अदनान खालिद का सवाल है। डॉक्टर अदनान खालिद ये पूछ रहे हैं कि हैज़ द क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स डिटीरिएटेड? आई मीन शादाब, हसरंगा एंड राशिद are the best in the world. How do you see them compared to Warney, Saklan, Murali? I mean, you can't match them. Saklan, Warney, and I mean they were greats of the game. Over the years, उन्होंने prove किया और आपकी greatness. I mean, अब तो format T20 भी आ गया है, तो you know we judge players or bowlers in a different manner. हमारे ज़माने में या जब ये जो आपने बड़े नाम लिए हैं तो दूसरे हम जो कि अभी भी मैं कहता हूँ कि टेस्ट मैच में जो अब जो परफॉर्मेंस होती है उस पे आपको बॉलर को या बैट्समैन को ज़्यादा जज किया जाता है। तो आई फील के यू नो दे आर वंडरफुल बॉलर्स, दीज यंग, दे नए फॉर्मेट्स पे दे टैकल द सिचुएशन एंड और जिस तरीके से बॉलिंग करते हैं, हैट्स ऑफ टू देम। बट अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो आई थिंक नो कंपैरिजन। Wasim. Yeah, I have a question for you, two batters sitting here. From Muzaffar Ali, can you please recommend batting drills to improve batting against spin bowling? Are there any drills, particular drill guys? There youngsters must be. can do?
उस दिन बताई थी तो ये उन्होंने रफ में बॉल करके जो जावेद भाई बताते थे जी बिल्कुल। उस दिन इस टॉपिक पे बात हुई थी कि आप जो है स्पिन को खेलने के लिए छोटे डिस्टेंस से खेलें और पैड्स नहीं पहने और रफ एरिया में खेलें, क्योंकि अगर आप टफ कंडीशंस रखते हैं अपने लिए स्पेशली प्रैक्टिस सेशंस में, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है मैच में खेलना, क्योंकि बहुत सिंपल सेइंग है कि जितनी टफ प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाता है मैच में खेलना। यू थिंक अगर आप पैड पहन के नहीं खेलते हैं, आप लोग तो प्रोफेशनल हैं, यू नो, एंड इट इज़ वेरी इजी बिकॉज इतने साल गुजारे हुए हैं। जो आप एक क्लब क्रिकेटर है या जो छोटा बच्चा है, अगर उसको अभी खेलना नहीं आता है, इतना अच्छा खेलना नहीं आता, तो वो अगर बगैर पैड के खेलेगा, should he play with like a tape ball or tennis ball or should he just go straight with the cricket ball? Because अगर लगेगी तो वो भाग भी बड़ी जल्दी जाएगा। देखिए विकी भाई, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। उसके लिए सिंपल ये है कि अगर आप बहुत छोटे हैं तो फिर आप, जैसे वकार भाई ने कहा कि आप सॉफ्ट बॉल से किसी को बोल सकते हैं कि वो सेम, जैसे अगर ऑफ स्पिनर है उसे बोले ऑफ स्पिन फेंके, या लेफ्ट आर्म स्पिनर है या लेग स्पिनर है तो छोटे डिस्टेंस से आपको बॉल फेंके और आप बैट के साथ सारी चीज़ें खेलने की कोशिश करो, चाहे वो लेग स्पिन है, लेफ़्ट आर्म स्पिन है जो आपसे अवे जाता है बॉल, या लेग स्पिनर है, तो आप कोशिश करो कि आप बैट से खेलने की कोशिश करो। और क्या होता है कि हम लोग ना दूर जब बॉल गिरता है ना तो हम उसको वहीं रह के ना तो उसको खेल लेते हैं, नहीं, उसको जब तक वो बैट में नहीं लगे आप एंड तक उसको देखो, क्योंकि उससे स्पिनर इज़ ऑल अबाउट प्लेसमेंट। जो बैट्समैन प्लेस करता है ना बॉल को, उससे उसको आइडिया होता है कि मैं जहाँ सोच रहा हूँ मैं उसको वहीं खेल सकूँगा। एंड इट डिपेंड्स कि आप किस चीज़ की प्रैक्टिस करो। कई दफ़ा होता है कुछ बैट्समैन क्रॉस जा रहे होते हैं, फ्रंट लेग उनकी क्रॉस जाती है और सीधे बॉल पे उसको इशू होता है। कुछ बैट्समैन हैं उनको विद द स्पिन खेलते हुए प्रॉब्लम हो रही है, तो वो फिर उसकी डिफरेंट जो उसको प्रॉब्लम है उसके मुताबिक जो है उसने ड्रिल्स करनी है। जो मलिक बात कर रहा है कि अगर आपको लगता है कि मैं लेफ़्ट आर्म स्पिनर पे स्पिन खेलने चला जाता हूँ और सीधे बॉल पे लेग बिफोर होने के चांसेस है, तो फिर हम नॉर्मली यूजुअली नए बॉल से सीमित विकेट पे प्रैक्टिस करते हैं ताकि बॉल आर्म के साथ सीधा आए और हम बैट पैड से आगे रख के उसको खेलें। एक बहुत बेसिक चीज़ है स्पिन खेलने के लिए, और वो आप कैसे भी पिच पे खेल रहे हो, जहाँ बॉल टर्न हो रही है या बॉल स्किड कर रही है, टर्न नहीं हो रही है, जो आपकी फ्रंट लेग है वो हमेशा सामने जानी चाहिए, वो कभी भी क्रॉस नहीं जानी चाहिए स्पिन बॉलर को खेलने के लिए, रिगार्डलेस यू प्लेइंग अगेंस्ट ऑफ स्पिनर और लेफ्ट आर्मर और लेग स्पिनर। तो हमेशा आपका जो फ्रंट फुट है वो सामने जाना चाहिए, यूं क्रॉस नहीं जाना चाहिए, बॉल की लाइन में नहीं जाना चाहिए, नहीं बॉल जाना के inside चाहिए, चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि बैट है, बॉल की इतनी inside पेस जाना नहीं होती स्पिनर की, तो आप बैट के साथ उसको मैनेज कर सकते हैं। All right, there you have it from the experts. आज the Pavilion का सिलसिला जारी था. We're going to take a break. See you on the other side. Welcome back to the Pavilion. मैं Fakhr आप देख रहे हैं Sports and Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup from Australia. Congratulations to Australia. They have opened their account of their first win after that shocking defeat against the New Zealand team. Sri Lanka has got to do a lot of work. We wish them all the best. आइए नजर डालते हैं कि what we have in store for you tomorrow. कल के मैचेस के बारे में आपको बताते हैं. ये है कल के मैचेस ग्रुप 1 के दोस्तों. पहला मैच इंग्लैंड बामुकाबला आयरलैंड मेलबर्न से सुबह 9 बजे आपकी खिदमत पे पेश होगा. और फिर जो दूसरा मुकाबला है वो है अफगानिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड 1 बजे मेलबर्न से आपकी खिदमत में पेश होगा. हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कल सुबह 7:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम. 7 बजे 8 बजे कितने बजे आना चाहते हैं आप? 8 बजे. कल 3 मैच नहीं है, कल नहीं, कल दो है. कल सर 2 है, परसों 7 बजे. परसों है हम 7 बजे. हम आना चाहते हैं, ये कह रहे हैं सुबह 7 बजे आना चाह रहे हैं, तो जज्बाती हो गए कि कल 2-3 है मैच. मैंने कहा 2 है कल 7:30 बजे आएंगे. 7 बजे आना चाह रहे हैं वसीम भाई. आई टोल्ड यू ही इज मॉर्निंग पर्सन. सूरज बाद में निकलते हैं, वसीम अकरम पहले शुरू हो जाते हैं. यही मामला है एक्चुअली, ऐसे ही है ना. तो सुबह सुबह जब मैं वॉक पे जाता हूँ जंगली कुत्ते भी सो रहे होते हैं. यू नो व्हाई? बिकॉज उन्होंने पता किसी ने आना ही नहीं. किन्नू पावांगा मैं. मैंने भी 2 लोगों के साथ दोस्ती की है जो न्यूज़पेपर नहीं फेंकते घरों में. मैं कहा यार मैंने भी ले जाया करो सुबह.
तो इस रास्ते में जो आते हैं ना जी। मैं इसका उनके बड़ा साथ आसान इधर ही आ तरीका है, जाता 10 बजे सो जाओ, 6 बजे उठोगे तो कितने घंटे हो गए नींद के? 8। परफेक्ट। ह्यूमन है, घोड़े तो नहीं है कि 36 घंटे की नींद तो हूं। लेकिन नहीं वसीम भाई 10 बजे तो मैं होटल भी नहीं पहुंचूंगा। हाँ, जो हालात चल रहे 11 हैं बजे सो जाना। हाँ, 7 11 घंटे बजे सो जाता हूँ मैं, आजकल मैं 11 बजे सो रहा हूँ। आजकल देर है, enough. बढ़िया। All right, gentlemen, thank you very much, Shoaib. Thank you, Waqar. Thank you, Wasim. Thank you, Misbah. Thank you. Sleep well, eat well, and I shall see you all four tomorrow morning. Shining bright in the morning, 7:30 a.m. You are watching the Pavilion, and we have to be. Sorry, Wasim bhai की उंगलियां यूं चलती हुई आती हैं मेरी तरफ. We'll see you tomorrow morning. Sorry, we're just being naughty now. That's because we're tired. We need to go to sleep. Keep watching the Pavilion. We'll see you tomorrow morning. Khuda Hafiz.